الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، صحابی رسول ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری ہیں، بدری ہیں، شاعر رسول ہیں۔ امر القیس عرب کا ایک شاعر ہے، اس کی اولاد میں سے غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ خود حضور نے پیشین کوئی فرمائی، غزوہ موتہ میں اگر زید شہید ہو جائیں تو علم جعفر کے حوالے کر دینا، جعفر شہید ہو جائیں تو علم عبداللہ بن رواحہ کے حوالے کر دینا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مسلمان مل کے چاہیں اس کو اپنا علم دے دیں۔ ایک یہودی اللہ کے محبوب کی یہ ہدایات سن رہا تھا جب اللہ کے محبوب نے غزوہ موتہ میں 8 ہجری کو غزوہ موتہ میں لشکر روانہ کرتے فرمایا یہ شہید ہو تو یہ شہید ہو تو یہ۔ اس نے اپنے یہودیوں کو کہا غزوہ موتہ میں 3 مسلمان جو شہید ہوں گے اس کو میں نام بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سے؟ کہ زید، جعفر، عبداللہ۔ کہ کیسے پتہ چلا؟ کہ ان کے نبی کہہ رہے تھے اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ ہوگا، یہ شہید ہو جائیں تو یہ ہوگا، یہ شہید ہو جائیں تو یہ ہوگا۔ تو نبی جو کہتے وہ آسمان کی وحی سے کہتے، تو ان تینوں کی شہادت پکی ہے۔ پھر یہ غزوہ موتہ میں تینوں شہید ہو گئے، اور آپ کو اللہ نے آپ کو دکھلایا بذریعہ وحی۔ آپ فرمایا وہ زید نے جھنڈا پکڑا، لڑا، آگے بڑھا، گھوڑے پہ چڑھا، شہید ہو گیا۔ وہ جھنڈا گرا، جعفر بن ابی طالب نے پکڑا، آگے بڑھے، لڑے، شہید ہو گئے۔ وہ جھنڈا گرا، عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ ان کی وضاحت فرما رہے تھے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کے ایک میں عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ صحابہ کی بات کرنا اللہ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کی بات کرنا اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کی باتیں کرتے تھے۔ صحابہ کی بات کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے ہمارا ایمان تازہ کرو معاذ بن جبل کی باتیں کر کے، یعنی صحابہ کی بات کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کی بات کرنا صالحین کی سنت ہے۔ 1400 سال سے کوئی جمعہ، کوئی خطبہ، کوئی وعظ، کوئی تقریر، کوئی تدریس، کوئی حوالہ، کوئی دینی گفتگو ایسی نہیں ہے جس میں صحابہ کی نماز، صحابہ کا ذکر، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کا تقوی، صحابہ کا جہاد۔ تو صحابہ کی بات کرنا محفل کو معطر کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے اذا اردتم یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل پاک ہو، غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عناد نہ ہو، تکبر نہ ہو، جس طرح گھر میں گندگی نہ ہو، کوڑا نہ ہو، جالا نہ ہو، مٹی نہ ہو، جس طرح ہم صاف کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل و دماغ پاک ہو، اجلا ہو، صاف ہو، نکھرا ہو، اس میں غیبت، چغلی، حسد، بغض، عناد، تکبر، شہرت، شہوت، حرام خوری نہ ہو تو کیا کرو؟ اذا اردتم یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہا کرتے تھے میرا ایمان تازہ کرو معاذ بن جبل کی باتیں کر کے۔ تو اللہ کی سنت ہے صحابہ کی بات کرنا، اللہ کے محبوب کی سنت ہے صحابہ کی بات کرنا، صحابہ کی سنت ہے صحابہ کی بات کرنا۔ اور تابعین، حسن بصری تابعی ہیں، 21 ہجری میں پیدا ہوئے، 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ تابعین کی سنت ہے صحابہ کی بات کرنا۔ اور صدیوں سے کوئی واعظ، کوئی مبلغ، کوئی محرر ایسا نہیں ہے جس کی گفتگو دینی ہو، نماز کی، حیا کی، اخلاق کی، ذکر کی، تقوی کی، طہارت کی، اخلاق کی، اخلاص کی، اور اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ صحابی کا، تابعی کا یا صحابیہ کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے اپنی محفل کو معطر کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، دل کو اجلا کرنے کے لیے اور سپرے کرنے کے لیے، جس طرح ہم فصلوں پہ سپرے کرتے ہیں کھٹمل، مکھی، مچھر، سنڈی کے لیے، دل کی زمین پہ بھی حسد کی جڑی بوٹی، تکبر کی جڑی بوٹی، ظلم کی جڑی بوٹی، مال کی جڑی بوٹی، حب دنیا کی جڑی بوٹی یہ اگاتی ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان جڑی بوٹیوں کے اوپر سپرے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی باتیں کرو، دل صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح کاشتکار خوش ہوتا ہے کہ فصل طاقتور ہوگی اگر جڑی بوٹیاں کم ہوگی۔ ایمان ایک پودا ہے، ایمان طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، شاداب رتے ہوں گی، شاخیں ہری بھری ہوں گی۔ کب؟ جب دل کی زمین پہ جڑی بوٹیاں نہیں ہوگی۔ تو ان جڑی بوٹیوں کو سپرے کیا ہے؟ کسی میڈیکل سپور سے، کسی اینٹی سیپٹک وائرس سے نہیں ملتے کہ وہاں سے سپرے لے آؤ اور سپرے کرو اور دل کی زمین پہ ایمان کے پودے کے گرد و پیش میں اگی جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں تاکہ ایمان کا پودا مضبوط ہو۔ تو دل کی زمین پہ ایمان کے پودے کے گرد و پیش میں اگی جڑی بوٹیاں جو ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ایمان کو مزمحل کرتے ہیں، ایمان کو ضعیف کرتی ہیں، اس کا سپرے صحابہ کی باتوں سے ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کے صحابی ہیں، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے 8 ہجری کو۔ ان کا ایک عمل تھا، وہ یہ تھا، وہ میں عمل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں چونکہ صحابہ کی باتوں سے، صحابہ کی تعلیمات سے، صحابہ کی ذات سے اجلا پن آتا ہے، خوشبو آتی ہے، نکھار آتی ہے، بہار آتی ہے، طاقت آتی ہے، ایمان پہ توانائی آتی ہے۔ صدیوں تک صحابہ کے یہاں یہ عمل تھا۔
تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کا ایک عمل تھا کہ وہ جب کوئی گزرتا مدینہ منورہ میں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تعال نؤمن بربنا سا. یہ ایک عبداللہ بن رواحہ کا عمل تھا. تعال پکڑتے ہاتھ، تعال نؤمن بربنا سا، آؤ یار تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لیں. ایک دفعہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا اور یہی جملہ اس کو دہرایا تعال نؤمن بربنا سا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لیں. تو یہ صحابی پھر اللہ کے محبوب کے پاس چلے گئے اور جا کے شکایت کی کہ عبداللہ بن رواحہ کو دیکھیں، آپ پر ایمان ہمارا عمر بھر کا ہے، اور وہ عمر بھر کے ایمان کو چھوڑ کر ایک لمحے کے ایمان کی دعوت دیتا ہے. بظاہر اعتراض بنتا تھا کہ آپ پر ایمان ہمارا عمر بھر کا، اللہ کے محبوب پر ایمان. اور ابن رواحہ کا جملہ یہ ہے کہ آؤ ایک لمحے کے لیے اللہ پر ایمان لیں. تو آپ فرمایا عبداللہ بن رواحہ جس محفل کی تمہیں دعوت دیتا ہے اس محفل پہ آسمان کے ملائکہ بھی رش کرتے ہیں. وہ ایمان لانا کیا تھا؟ چونکہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ مسلمانوں سے یہ ہے کہ ایمان لو. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، یہ سارے مطالبات بعد میں. جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو سب سے پہلا مطالبہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے سے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لو. مدینہ منورہ میں کچھ بدو ہے اور وہ آ کے دعویٰ کرنے لگے قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے. تو اللہ نے ان کے دعویٰ کو نقل کیا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لے. کافر سے مطالبہ اسلام کا ہے، اسلام اسلم تسلم. اور جب کوئی اسلام لیے، جیسے میں اور آپ اللہ کا شکر ہے پیدا ہوتے ولادت کی اولین گھڑیوں میں اذان اور تکبیر کے روپ میں اذان اسلام لیے، ہم سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ کافر سے مطالبہ ہے اسلام کا اسلم تسلم. ہم سے مطالبہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے اسلام لانے والو تم ایمان لو. تو ابن رواحہ رضی اللہ کہتے تھے آؤ اللہ پر ایمان لیں. ایک دفعہ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا کہنے کہ آؤ اللہ پر ایمان لیں. اس نے کہا کیا مقصد؟ کہ نذکر اللہ عز و جل، آؤ اللہ کی قدرت کی، طاقت کی، ہیبت کی، سطوت کی، بصارت کی، علیمی کی، خبیری کی باتیں کریں. جس طرح ہمارے سر دن پیسے کی، ڈالر کی، یورو کی، پاؤنڈ کی، صدر کی، وزیر کی، جنرل کی، کرنل کی، ملک کی، مال کی، روس کی، شام کی، جاپان کی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے گھر میں، چوپال میں، ڈیرے پہ، پی ٹی آئی کی، نون کی، فلاں فلاں. سر دن محفلیں آلودہ ہوتی ہیں، پلوٹ ہوتی ہیں، تاریک ہوتے ہیں، متفن ہوتے ہیں، بدبودار ہوتی ہیں، غلیظ ہوتی ہیں. ان کا ذکر کر کے ابن رواحہ رضی اللہ کہہ رہے ہیں آؤ ایمان کی باتیں کریں. اللہ کی طاقت کتنی ہے، قدرت کتنی ہے، ہیبت کتنی ہے، سماعت کتنی ہے، بصارت کتنی ہے، گویائی کتنی ہے، اللہ کا دیکھنا کیسا ہے، سننا کیسا ہے. یہ سب سے ایمان کی پہلی بات ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو چیز حواس خمسہ کی زد میں نہ آئے. میں ایک علم حواس خمسہ کے ہاتھ سے چھو کے دیکھ لو، آنکھ سے رنگ دیکھ لو، زبان سے ذائقہ دیکھ لو، کان سے آواز سن لو، ناک سے خوشبو سونگھ لو. عام طور پر انسانوں کو علم ان 5 چیزوں سے آتا ہے. ہاتھ سے آتا ہے، ناک سے آتا ہے، آنکھ سے آتا ہے، زبان سے آتا ہے، کان سے آتا ہے. تو جو علم ان 5 حواس کی زد میں نہ آئے اور پھر آدمی اس کو مان لے، کیوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ چھوا جا سکتا ہے کہ نہیں، اللہ سونگا جا سکتا ہے کہ نہیں، اللہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، اللہ مس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اللہ کو سنا جا سکتا ہے کہ نہیں، پھر اللہ کیسے مانتے ہو؟ ایمان تو یہی ہے کہ چھوا جائے، سونگا جائے، دیکھا جائے، چکھا جائے. کہنے لگے قبر کو دیکھا جا سکتا ہے، قبر کے عذاب کو، تقدیر کو، ملائکہ کو، دوزخ کو، حشر کو، ان کو دیکھ کہنے کہ پھر کیوں مانتے ہو؟ یہ چیزیں تو حواس خمسہ میں 5 سینسز میں آتی بھی نہیں. آدمی کہتے چیز کڑوی ہے، چکھ لیا، چیز گرم ہے، ہاتھ نے دیکھا، چیز سرخ ہے، آنکھ نے دیکھا، چیز خوشبودار ہے، ناک نے سنا، چیز دور ہے، کان نے سنا. تو یہ چیز علم کا ذریعہ. تو کیا تقدیر کو، ملائکہ کو، قبر کو، آخرت حشر کو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، قبر کے کوسچن کو کہ نہیں، کہ پھر کیوں مانتے ہو؟ کہ اللہ کے محبوب نے کہا گو میرے حواس خمسہ میں 5 چیزوں میں نہیں آتا، لیکن کائنات کی سب سے بڑی صادق مصدوق ذات نے کہا سو اس پر میں انشے کی بیلیف لاتا ہوں، غیر متزلزل یقین لاتا ہوں. میں آپ کو جھٹلا سکتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میرا یہ، لیکن جو خبریں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بے شک وہ نہ چھونے میں آئے، نہ سونگنے میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے، نہ مس کرنے میں آئے، نہ کچھ، لیکن میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ کائنات کی سب سے طاقتور وٹامن ہے. قرآن مجید میں آتا ہے جس میں ایمان نہیں وہ مکڑی کے جالے سے کمزور ہے. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں آتا ہے والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے وہ تو مکڑی کے جالے سے کمزور ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. دنیا میں جتنے بھی نشیمن ہیں، آشیاں ہیں، گھونسلے ہیں، قرآن کہتا ہے ان میں سب سے کمزور اور بودہ اور بے وقت اور بے حیثیت اور بے مایہ گھر مکڑی کے جالے کو ہوتا ہے. آپ گھر سے باہر چلے گئے، 5 دن کے لیے ناظرن ایریاز میں گئے، مری شام فلاں فلاں، واپس آیا تو گھر کے اس کونے پہ جالے ہیں. اب اس جالے کو اتارنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے، کتنا زور چاہیے. ایک بچہ جھاڑو پکڑ کر تنکے کی نوک سے مکڑی کے جالے کو اتار سکتے ہیں.
कुरान कहते हैं जिसका ईमान कमज़ोर है वो मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। ग्रेड कैसा हो, ओहदा कैसा हो, डिग्री कैसी, कौम कैसा हो, घर कैसा हो, गाड़ी कैसी, मकान कैसा हो, स्टेटस कैसा हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जिसके अंदर ईमान नहीं है वो मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। मकड़ी के जाले से कमज़ोर कायनात में कोई चीज़ नहीं। और सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? क्या? ईमान। औरत सबसे कमज़ोर होती है, शादी हो जाए तो और कमज़ोर हो जाती है, बच्चे हो जाए तो और कमज़ोर हो जाती है। औरत खुद सिन्फ नाज़िक है, उसकी अल्लाह ने मैन्युफैक्चरिंग ऐसे की है कि औरत को सिन्फ नाज़िक कहते हैं। जब माँ बन जाए, बीवी बन जाए तो फिर उसकी नज़ाकत में और आ जाती है। फिर माँ बन जाए तो फिर बच्चा पैदा होने के बाद उसकी, आपने देखा होगा डाकू जब आते हैं किसी घर में अटैक करते हैं तो बच्चों के ऊपर आके गन पॉइंट रखते हैं। फिर माँ कमज़ोर होती है और बच्चों के कहने पे दोनों हाथों से सारी चीज़ें दे देती है, ये पैसे, ये जेवर, ये फलां ले लो। फ़िरौन की बीवी कुरान मजीद में आता है, औरत भी है, बीवी भी है, माँ भी है। और फ़िरौन कायनात का सबसे ज़ालिम मुतकब्बिर, सिंबॉलिक टच है, कायनात का सबसे मुतकब्बिर और ज़ालिम इंसान है। फ़िरौन के सामने आसिया ज़रबल्लाहु मसलन निमरत फ़िरौन, कुरान मजीद में आता है, ईमान वालों को सुनाओ इस आसिया की बात जो अड़ गई फ़िरौन के सामने। उस दौर का फ़िरौन, कायनात में जुल्म का इस्तारा फ़िरौन है और कमज़ोरी का इस्तारा आसिया है, बादशाह, शहजादी है, मलिक है। उसने कहा मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाई हूँ। तो फ़िरौन ने कहा ये क्या, रब तो मैं हूँ? कहने की नहीं, मैं मूसा उस रब पर जो मूसा और फ़िरौन का रब है, मूसा और हारून का रब है। इस पे फ़िरौन अड़ गया। फिर तशद्दुद जितनी मुमकिन है, जिस्मानी है, ज़हनी है, भूख का है, प्यास का है, मौसमों का है, तशद्दुद की जितनी किस्में हो सकती हैं, माशी, अखलाकी, ज़हनी, जिस्मानी, मुफस्सिरीन ने लिखा है सारी तशद्दुद की सूरतें आसिया पे तोड़ दी गईं। लेकिन आसिया का ईमान इतना ताकतवर था कि वक्त की स्टेट के फ़िरौन के मुकाबले में खड़ी हो गई। तो अल्लाह कहता है मेरे महबूब इनको सुनाओ आसिया का किस्सा कि जब ईमान आ जाता है तो सिन्फ नाज़िक वक्त के सबसे बड़े फ़िरौन से टकरा जाती है, और जब ईमान नहीं आता तो छोटी छोटी बातों पर, आँख की खातिर, ज़ुबान की खातिर, पैसे की खातिर, 2 रुपये की खातिर, बीवी की खातिर आदमी अल्लाह को, रसूल को, कुरान की तालीमात को पामाल करता चला जाता है। सबसे खोखला, बोदा, बेवुकत, बेहैसियत, बेमाया शख्स कायनात में हुआ है जिसमें ईमान नहीं है। और सबसे ताकतवर, मजबूत, हमालिया से, कोहिंदुका से, कराक्रम से, हत्ता के 7 आसमानों से मजबूत वो शख्स है जिसके अंदर ईमान आ गया। कुरान मजीद में उस सूरत में आता है कि देख लो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर लाए हैं, जादूगर उस दौर के कुफ्र का इस्तार हैं कि आप मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करो। उन्होंने कहा अगर हम मुकाबले में टॉप कर गए तो क्या इनाम होगा? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मुशीर ख़ास बना लूँगा, वज़ीर ख़ास बना लूँगा, जिस तरह हमारे यहाँ वज़ीर आला के मुशीर होते हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर होते हैं, तुम मेरे मुकर्रब हो जाओगे। इस पे फिर मुकाबला हुआ, खुले आम मुकाबला हुआ और फ़िरौन के जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप अपना अजदहा फेंका और रस्सियों को निकल गया। फ़िरौन के जादूगरों ने देखा कि जादूगर के चेहरे पे जो नौसत होती है, यबूसत होती है, खबासत होती है, गलाजत होती है, कमीनगी होती है, गंदगी होती है, मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे नूरानियत है, पाकीज़गी है, तहारत है, पाकीज़ा मंजर है। जादूगर एक वहशी इंसान होता है, हर वक्त मनफी सोचों की आमादगा होता है। फिर जादूगर का जब मुकाबला जादूगर से हो तो जादूगर हमेशा जादू में पहल का ख्वाहिशमंद होता है कि मैं आगाज़ करूँ। इधर वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के जादूगर कहते हैं आप पहल करो, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम पहल करो। इस बात पे वो हिल गया कि अगर ये जादूगर होता तो पहल के कैश करा लेता कि मैं ऑफेंसिव पोजीशन की बजाय आना चाहता हूँ, डिफेंसिव की बजाय मैं हमला करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डंडा फेंका वो सब सांपों को निकल गया। तो जादूगर जानते थे कि जादू की कोई किस्म ऐसी नहीं है जो ये रूप ले सके। जब ये मंजर देखा तो कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। एक लम्हा, ये नहीं कोई जद्दी पुश्ती, 7 नस्लों से मुसलमान है, 30 साल से मुसलमान है, कुरान पढ़ते हैं, चिल्ला लगाते हैं, आलिम हैं, मुजाहिद हैं, वाइज हैं, तस्बीह करते हैं, चाश्ता, इशराक है, वाबी, कुछ भी नहीं है। पहले बिल्कुल फरीक मुखालिफ हैं, मुखालफत के मुकाबले में, और चंद लम्हों के बाद, सेकंड्स की बात है, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब पर ईमान लाए। तो फ़िरौन ने कहा किस पर? रब मूसा व हारून, जो वो रब मूसा और हारून के उस पर ईमान लाए। फ़िरौन ने कहा मैंने तुम्हें अपनी फतह के लिए उतारा था मैदान में, तुमने ये क्या किया? उसने कहा हम ईमान ला चुके हैं चंद लम्हे पहले। चंद लम्हे पहले ये था कि तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे, बेपनाह तुम्हें टिकट मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, रकबे मिल जाएंगे। चंद लम्हे बाद, जो सेकंड्स के बाद ईमान आता है, तो कहते हैं हम रब्बिल आलमीन पे ईमान लाए, रब मूसा हारून पे ईमान लाए। उसने कहा मैं तुम्हारे दाएं हाथ बायां पाँव काट दूंगा, तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। तो कुरान मजीद में आता है, वो कहते हैं जो चाहे कर गुजरो। जिस्म की शिकस्त को शिकस्त नहीं कहते, नज़रियात के बदलने को शिकस्त कहते हैं। फ़िरौन तशद्दुद चढ़ा दिया, दाएं हाथ काटा, बायां पाँव काटा, फिर दायां पाँव काटा, बायां हाथ काटा, फिर टुकड़े टुकड़े।
जिस तरह हम कीमा बनाते हैं, काटते गया। ईमान इतना ताकतवर है, बिल आखिर जब आखिरी सांस तो उसने सूली पर लटका दिया। तो कुरान कहता है कि जिस्म के तोड़ फोड़ को, तशद्दुद को, कि एक आदमी को कत्ल कर दो, टुकड़े कर दो, हैंग कर दो, उसको आग लगा दो, ये शिकस्त नहीं है। शिकस्त ये है कि उससे ईमान के नज़रिए को बदल डालो। तो ईमान जब आ जाता है तो मुसलमान कायनात का सबसे ताकतवर इस दौर का ये है। इकबाल कहते हैं ना कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। मेरी आपकी ताकत ये किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फ़रेब सूद व ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। तूने पैसों का, रकबों का, मुल्क का, माल का, गाड़ी का, सोने का, चांदी का, डायमंड, इस बिना पे ताकतवर होने का इस्तारा बनाया। इससे कभी कोई ताकतवर नहीं होता। इंसानी जिस्म की हिफाजत होती है रूह के साथ। अगर एक आदमी की रूह निकल गई तो आई वाले के पास ले जाओ, स्किन वालों के पास ले जाओ, हार्ट वालों के पास ले जाओ, ENT वालों के पास ले जाओ। वो कि जब रूह निकल गई तो इलाज का फ़ायदा कोई नहीं। मुसलमान की जो रूह है वो ईमान है। ईमान अक़ायद पे लाता है, ईमान नमाज इबादत पे लाता है, ईमान मामलात पे लाता है, ईमान अखलाकियात पे लाता है, ईमान इसार पे लाता है, ईमान आँख को झुकाता है, ईमान ज़ुबान पे सच लाता है, ईमान हाथ में सखावत लाता है, ईमान दिल में गैरत लाता है, ईमान गर्दन को खड़ा करता है, ईमान इस्लाम पे रहने का, ये सारी चीज़ें ईमान से हैं। तो अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह का अमल था, आओ अल्लाह पर ईमान लें। तो ईमान कैसे लें? कि ताल नुमिनु बिरब्बिना सा, वो जो मैंने कहा इब्न रवाह रज़ी अल्लाह का एक अमल, ताल नुमिनु बिरब्बिना सा, आओ अल्लाह पर ईमान लें। कैसे? इन्नल कल्ब, आओ अल्लाह की बातें करें, अल्लाह की अजमत, कुदरत, ताकत की बातें करें। मैं कभी सोचता हूँ अगर इस दौर के लोग इब्न रवाह की सुन्नत को जिंदा कर लें, घर में आके बैठें, आओ अल्लाह पर ईमान लें, दोस्तों के पास बैठें, आओ अल्लाह पर ईमान लें, चौपाल में बैठें, आओ अल्लाह पर ईमान लें, अगर ये सुन्नत इब्न रवाह रज़ी अल्लाह की कुछ अरसे के लिए मुआशरे में जिंदा हो जाए तो हमारी आंखों में हया आ जाए, दिल में गैरत आ जाए, दिमाग में इश्क़ मुस्तफ़ा आ जाए, मस्जिदें आबाद हो जाए, हाथों में सखावत आ जाए, घरों में मौसीकी के हालात ख़त्म हो जाए, पैसा ऐसे लोगों में बरकत आ जाए। अगर कुछ लोग कुछ अरसे के लिए इब्न रवाह रज़ी अल्लाह की सुन्नत मुबारक हो कि आओ अल्लाह पर ईमान लें, बच्चे घर में बैठे, बीवी बच्चे आओ अल्लाह पर ईमान लें, दोस्त आओ अल्लाह पर ईमान लें, महफिल में आओ अल्लाह पर ईमान लें, कलीने का आओ अल्लाह पर ईमान लें, दोस्तों, तो कुछ लम्हे के लिए अगर ये ईमान की महफिलें, फिर खुद फरमाया करते थे कि इन्नल कल्ब असरा तक़ल्लुब मिनल किद्र इज़स्तजमत गलियानहा, कि दिलों की हालत उस हंडिया की तरह होती है। हंडिया के नीचे जो कुछ हो, अगर आग तेज़ है, आँच तेज़ है, गैस तेज़ है, तो हंडिया के अंदर जो कुछ है वो उबल जाएगा। और अगर आँच को बुझा दिया जाए, गैस को ठंडा कर दिया जाए, कोयलों को अंगारा बना दिया, अंगारों को कोयला बना दिया, तो हंडिया के अंदर जो कुछ है वो ठंडा हो जाएगा। कहने की ईमान की ऐसी दिल में ईमान है, अल्लाह की बातें करो, अल्लाह की ताकत, अज़मत, तो ईमान जो है वो कोयले अंगारा बन जाते हैं, ईमान दहक उठता है, ताकतवर बन जाते हैं। तो मैं और आप आज थोड़ी देर के लिए, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम घरों में, दफ्तर में, दुकान में, ज़रिए मुआश में इस सुन्नत को जिंदा करें, क्योंकि हमारे अरसा से हमारे ज़ुबानों को जंग लग चुका है। अरसा से हमारे पैसा, टका, मुल्क, माल, सदर, वज़ीर, मुशील, ये बतौर सज़ा है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। कुछ अरसे पहले हमारी ज़ुबानों पर अल्लाह अल्लाह था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र गया, मुज़ाकरे गए, फिर अब्दुल दिरहम, अब्दुल दुनिया, अब्दुल दिनार बन गए, पता नहीं चलता ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं वहाँ रहता था नाज़िमाबाद के इलाके में, मेरी गली के दाएं, मेरे घर के दायां, मेरे घर का बायां, मेरे घर का पिछला, 3 दीवारें ईसाइयों के साथ मिलती थीं। वो 14 नंबर गली नाज़िमाबाद की बी बुलाक की ईसाइयों की गली थी। मैं नया नया गया तो मुझे पता नहीं चलता था ईसाई कौन है, मुसलमान कौन है। यानी जब अल्लाह की बात ख़त्म हो जाती है, ख़ज़ां का मौसम आता है तो अब मालिक के पास जाओ, मुझे पीला गुलाब चाहिए, नीला गुलाब चाहिए, काला गुलाब चाहिए, सुर्ख गुलाब चाहिए, येलो गुलाब चाहिए। वो कहता है ख़ज़ां का मौसम है, पत्ते नहीं है, टहनियाँ नहीं है, गुंचे नहीं है, शाखें नहीं है। जब बहार का मौसम आएगा, गुंचे खिलेंगे, फूल आएंगे, फिर पता चलेगा। जब अल्लाह की बातें होती हैं तो ईमान के गुंचे आते हैं, शक्ल से, लिबास से, मकान से, सोच से, गुफ्तार से, किरदार से पता चल जाता है ये मुसलमान है। और जब ईमान के तज़किरे ख़त्म हो जाते हैं तो न लिबास से, न जूते से, न बोल से, न चाल से, न मामला से, न अखलाकियात से पता नहीं चलता। मैं हफ्तों रहा, यकीन जाने, मैं एक पैमाना तय करता है कि ये मुसलमान है, ये होगा, ख़त्म। बिल आखिर मेरे पास जो पैमाना बचा वो पैमाना ये था कि मैं नाम पूछता था। एक दिन मैंने एक आदमी से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, क्योंकि बाकी जितने पैमाने मुसलमानों के थे वो अल्लाह के मुज़ाकरे, इब्न रवाह की सुन्नत को छोड़ने की वजह से वो पैमाने टूटते गए, गुंचे मुरझाते गए, शाखें टूट होती गई, दरख्त बेबरगुबार होते गए और मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म होती गई। फिर मैंने एक दिन पूछा तुम्हारा क्या नाम है, उसने कहा सिद्दीक। मैंने कहा यकीनन ये मुसलमान होगा। मैंने कहा मुसलमान, कहने लगे ईसाई। मैंने कहा मर गए। एक दिन एक से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कि शहजाद। मैंने कहा मुसलमान, कहने लगे ईसाई। मैंने कहा नाम भी गए। फिर एक मैंने कहा चलो नाम भी गया तो अब इनसे मैं ज़ातें पूछता हूँ, क्योंकि मुमकिन है ईसाइयों की ज़ातें कुछ और, मुसलमानों की ज़ातें कुछ और।
تو میں نے ایک دن پوچھا، باقی سارے آہستہ آہستہ جو نشانیں تھیں علامات تھی ختم ہو جا رہی تھیں. میں نے پوچھا آپ کی ذات کون سی ہے؟ کہ بٹ کالا تھا. میں نے کہا پہلی دفعہ کالے بٹ دیکھے، میں نے کبھی کالے بٹ دیکھے نہیں. میں نے کہا یہ کاربن پیپر پہلی دفعہ دیکھ بٹ ہو کہنے کا. میں نے کہا نام بھی گئے، لباس بھی گئے، شکلیں بھی گئیں، عادتیں بھی گئیں. پھر میں نے کہا اب کیا کروں، مجھے بات تو کرنی ہے، عیسائیوں کو دعوت اور دینی ہے، مسلمانوں کو دعوت اور دینی ہے. تو پھر میں نے 5-4 موڑے خریدے. میں نے وہ چھوٹی سی وہ جو قہوہ بناتے ہیں پٹھان، وہ بنا کے میں گلی میں بیٹھ جاتا. اور پھر میرے ذہن میں تھا ایک میں نے دعوت تیار کی ہومیوپیتھک ٹائپ کہ کھاؤ تو فائدہ کوئی نہیں، نہ کھاؤ تو نقصان کوئی نہیں. ایسے میٹھی میٹھی دوائی تھے کہ عیسائی کو بھی فٹ ہو جائے، مسلمانوں کو بھی فٹ ہو جائے. وہ میں جب عیسائی مل جاتے ہیں مسلمان تو پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے. نام گیا، لباس گیا، شکل گئی، آتے گئے، کردار گیا، خلط سب کچھ ختم ہو گیا چونکہ وہ محنت جو ختم ہوگی. پھر میں وہ مڑ لے کے برتن لے کے تو قہوہ بنا کے، قہوہ سستا ہوتا ہے، ایک چند پتے ڈالو اور بے شک 50 کپ بنا دو. میں لے کے بیٹھ جاتا، گڑ لے کے بیٹھ جاتا. اب وہ آتے تو میں کہتا قہوہ تیار کر لیں. پھر میں وہ ہومیوپیتھک دعوت شروع کر دیتا کہ اگر عیسائی ہے تو وومنٹ نہ کرے، مسلمان ہے تو ریئیکٹ نہ کرے. دونوں کے لیے ملی جلی دعوت ہوتی تھی. پھر میرے پاس ایک پیمانہ ہاتھ آ گیا. میں خوش ہو گیا کہ یہ شکر ہے پیمانہ. وہ پیمانہ چند دن چلا جس سے مجھے رضوان پتہ چل گیا کہ یہ سننے والا جو بات کر رہے ہیں یہ عیسائی ہے یا یہ مسلمان ہے. پھر میں اپنی بات کو ہومیوپیتھک سے ایلوپیتھک طرف لے جاتا. پھر میں دعوت نشتر یا آپریشن یا سرجری شروع کر دیتا. وہ پیمانہ کیا تھا؟ جو دین کی بات کو غور سے سنتا وہ عیسائی ہوتا تھا، اور جو انگڑائی لیتا، جمائی لیتا، منہ بناتا، خجلی کرتا، خارج کرتا دائیں بائیں تو یہ پکا مومن خان مومن ہوتا تھا. جو دین کی بات پہ دائیں بائیں کرے، آگے پیچھے کرے، وہ پکا مومن ہوتا تھا. یہ میرا چند دن چلا کہ یہ غور سے بات سننے والا یقیناً یہ عیسائی ہے، اور یہ کھجلی کرنے والا، خارج کرنے والا، دائیں بائیں کرے، یہ پکا مسلمان ہے. پھر میں اپنی بات شروع کر. ایک دن بیٹھا تھا میں، اس طرح کچھ نوجوان آ گئے. ایک نوجوان ہے، میں نے اس کو دعوت شروع کی تو اس نے بڑی غور سے سنی. میں نے کہا پکا کاٹا، یہ کیتھولک ہے یا پروٹسٹ عیسائی ہے. تو میں نے جب ساری علامات اور سمپتم پورے پا لیے پھر میں نے کہا یہ بتاؤ یار آپ خالہ زاد بہن سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عیسائیوں کے یہاں خالہ زاد بہن بھی جسٹ لائک سگی بہن کی طرح ہوتی ہے. مجھے کہنے کہ پروفیسر صاحب اللہ آپ کو ہلاک کرے، میں تو مسلمان ہوں. میں ہکا بکا. مجھے پہلے دن کسی کے مسلمان ہونے پہ دکھ ہوا. میں نے کہا یہ مسلمان ہو؟ کہنے گیا. میں نے کہا پھر دین کی بات کو غور سے کیوں سنا؟ یعنی یہ بات تو آپ کا حق نہیں تھا. عیسائی اور وہ تو دین کی بات کو سنے، مسلمان کا تو حق تھا، جمائی، انگڑائی، دائیں بائیں. تو اس نے کہا اللہ آپ کو خیر ہے، میں مسلمان ہوں. میں نے کہا واقعی؟ مجھے شک ہوا کہ مسلمان ہوں. مجھے دکھ ہوا کہ یار یہ مسلمان. دکھ اس بات کا ہوا کہ میرا پیمانہ، میرا پیرامیٹر، میرا لیٹمس پیپر، میرا جو پہچان تھی وہ گم ہوگی. تو میں نے کہا اگر تم مسلمان ہو تو دین کی بات کو غور سے کیوں سنا؟ یہ تو حق ہے عیسائی کا، تمہارا حق تو نہیں ہے. یہ جو میرا آخری پیمانہ تھا، یعنی جب دین کے مذاکرے، دین کا ذکر، ابن رواحہ کی سنت ختم ہو جاتی ہے تو پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں. گجرات میں ٹرین کا حادثہ ہوا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کس کو جلائیں کس کو دفن کریں. پہچان ختم ہوگی. یعنی خوردبین لگا کے دیکھیں تو مسلمان کی شناخت اور پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن وہ ختم ہوگی. پھر ان پتہ نہ چلے کہ یہ جو حادثے میں بالکل ایسے بنے پڑے ہیں، سینڈوچ بنے پڑے ہیں، حادثہ ہوا، شدید ہوا، تو یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے یا ہندو ہے، پہچان ہی ختم ہوگی. حالانکہ مسلمان کروڑوں کے بیچ میں نمایاں تھا. اس کی عادات، وضع، قطع، حرکات، سکنات، کیفیات، جذبات، احساسات، صورت، لباس، اتنی آئیڈینٹیفیکیشن اور شناخت ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان تو کروڑوں میں پہچانا جاتا تھا، اب پہچانا نہیں گیا. تو نہ پہچانے جانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ابن رواحہ رضی اللہ کی جو سنت تھی، گھر میں بیٹھ کر آؤ اللہ کی باتیں کرے، دفتر میں آؤ اللہ کی باتیں کرے، دوستوں میں آؤ اللہ کی باتیں کرے، محلے میں آؤ اللہ کی باتیں کرے. جب سے یہ ابن رواحہ کا سنت مبارکہ چھوٹ گئی تو ہماری پہچان، شناخت، غنچے، خوشبو، پھل، ہرا بھرا ختم ہو گیا. تو میں نے کہا چیز بتایا. میں نے کہا اگر تم واقعی تم کہنا اگر کیا میں مسلمان ہوں، مجھے شاید یقین آیا کیونکہ میرے 5-7-10 دن کی محنت سے ایک کب وہ آ گیا تھا. میں نے کہا اگر تم مسلمان ہو. مجھے کہنے کہ پروفیسر باپ اگر میرے سے کلمہ سن لو، لا الہ الا اللہ. اس نے کلمہ سنا دیا. میں نے کہا چل پکا ہو گیا مسلمان ہوں. لیکن میں نے کہا بتا آپ نے دین کی بات کو غور سے کیوں سنا؟ تو اس نے بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے بل نکالا بجلی کا کہ میرے بل میں 400 یا 300 کم رہ رہے تھے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میٹر کٹ جانا تھا. میں پیسے لینے کے لیے آپ کی بات غور سن رہا تھا. آپ خوش نہ ہو، میں دین کی وجہ سے بات نہیں سن رہا تھا. میں نے کہا یہ پیسوں کی بات تو کوئی نہیں، 300-400، لیکن میرے لیے آئندہ یہ ہوگا کہ میں کوئی بات غور سنوں گا تو میں دیکھوں گا کہ کہیں جیب سے بل نہ نکال دے. میرے پاس جو ایک پہچان تھی وہ ختم ہوگی کہ آئندہ ممکن ہے میں کسی کو سمجھوں گا عیسائی اور بات پھیروں گا عیسائیوں والی، وہ کہے گا میں تو مسلمان ہوں. میں نے کہا پہچان. اس نے کہا یہ بجلی کا بل ہے، میرے 300 روپے کم. تو ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہماری شناخت، پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن وہ ختم ہوگی. پاؤں کے ناخن سر کی چوٹی تک، صبح کی بیداری سے شام کے سونے تک اور ولادت سے وفات تک اتنے نمایاں قسم کے خصائص ہمیں ملے
کہ ہم تو جس طرح 14ویں کا چاند ستاروں میں اور دوپہر کا سورج آسمان پہ نظر آتا ہے، اللہ کی قسم مسلمان ایسے نظر آتا تھا جب مسلمان اپنے ابن رواح رضی اللہ عنہ کہ آؤ اللہ کی باتیں کریں. تو میں صرف تھوڑے دن کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ آؤ اللہ کی باتیں کریں، ابن رواح رضی اللہ کا کیا مقصد کہ اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت کی باتیں کریں، دل بوجھ سے، خوف سے، تکلف سے، خوشامد سے، چاپلوسی سے، لالچ سے، منگتے پن سے، سائل پن سے نکل جائے. جس آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ اس کو خرید نہیں سکتا، کوئی ظالم اس کو جھکا نہیں سکتا، کوئی طاقت اس کو مروب نہیں کر سکتا. ہمالیہ بھی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی ہندو کش بھی جگہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی کراکرم بھی جگہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان حقیقت میں آ گیا اس کو آدمی کوئی کائنات کا کوئی آدمی نہ خرید سکتا، نہ ہلا سکتا، نہ جھکا سکتا، نہ زور سے، نہ زر سے، نہ زاری سے، بشرطے کہ مسلمان آ جائے. اس لیے غیر نے کوشش کر کے ہمارے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، چوپال کی گفتگو ہے، گھر کی گفتگو ہے، سلیبس کی گفتگو ہے، اس میں اللہ کی ذات کی بات ہی نکال دی. اللہ ایک بھولی بسری داستان کا نام بن گیا. اللہ نے کہا، ڈی سی نے کہا، اللہ نے کہا، ایس ایس پی نے کہا. اب آپ دیکھیں طبیعت کس کے اثر لیتے، ڈی سی نے کہا دکانیں بند ہوں گی تو پھر کیا؟ رجال اللہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مومن وہ ہیں جو خرید و فروخت کے وقت دکانیں بند کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں آرڈیننس پاس کیا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، چونکہ اللہ کی ذات کا اثر کوئی نہیں. تو ابن رواح رضی اللہ عنہ کا عمل اگر ہماری دنیا میں آ جائے تو ہمارے دل شاد ہو جائیں، آباد ہو جائیں، ہرے بھرے ہو جائیں، سرسبز ہو جائیں. ہمارے اندر سے خوشامد، چاپلوسی، جھکنا، بچھنا، جی حضوری، یسر کی پالیسی ساری ختم ہو جائے. ہمارے لہجے کشکول ہیں، ہاتھ کشکول ہیں، آنکھیں کشکول ہیں، زبان کشکول ہے، لب و لہجہ کشکول ہیں. ہمارے دل وہموں کے جنگل بنے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اٹے پڑے ہیں، جنگل کی جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں، ایسے راستہ کوئی نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا یقین، اٹوٹ یقین، انشے کی بلیف نہیں ہے. میں صرف 2-3 واقعہ. اچھا اللہ کی ذات کا یقین کیسے ہے، ایمان کیسے ہے، اس کے لیے 2 طریقے ہیں. آپ اس کو کوشش کریں. مرنے کے بعد بیری کے پتوں سے غسل دے کر جسم کی میل لے جانے کی شریعت بھی روادار نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل دو. کیوں؟ تاکہ انگ انگ میں، مسام میں چھپی میل نہ جائے. تو انگلی کا انگوٹھی کہاں جائے گی، رنگ کہاں جائیں گے، پازیب کہاں جائیں گے، کنگن کہاں جائیں گے، بینک بیلنس کہاں جائیں گے، پراپرٹی کہاں جائیں گے، میراث کہاں جائے گی. مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا کہ زمین انتقال کے بعد آدمی کیوں جاتی ہے؟ آدمی انتقال کے بعد بولو جی زمین انتقال کے بعد آدمی خوش ہو جاتا ہے. یہ 5 مرلے، یہ 10 مرلے، 2 ایکڑ، 4 ایکڑ، یہ 1 کنال، تو خوش ہو جاتا ہے. رات کو خواب دیکھتا ہے. زمین خوش کرتی ہے آدمی کو انتقال کر کے. تو جب 2 4 10 انتقال ہو جاتا ہے، زمین کہتے ہیں مجھے بھی تو خوش کرو، تو بھی تو انتقال کرنا. زمین انتقال کے بعد آدمی کی ہو جاتی ہے اور خوش ہو جاتا ہے. آدمی کہتے ہیں، زمین کہتی ہے میں نے تمہیں خوش کیا، پلاٹ میں، مرلے میں، بینک بیلنس میں، فلاں خوش کیا. کہاں کہ اب تو مجھے خوش کر، تو بھی تو میرے نام انتقال ہو جاتا ہے. یہ کل آدمی کی زندگی ان 2 دوڑوں کے درمیان میں. انتقال کے بعد ضمیر میرے نام ہو جائے، میرے انتقال کے بعد اس کے نام ہو جائیں. تو مرنے کے بعد آدمی کے پاس ما سوائے ایمان کے کوئی چیز کائنات میں قبر میں جاتی نہیں ہے. قبر میں ایمان، حشر میں ایمان، پلسرات پہ ایمان، میزان میں. اور اس دور کی جن سے بے مایا، بے وقت، بے حیثیت چیز ایمان ہے. ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا کوئی دھاگا ہو، کوئی سیب آدمی اس کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے کہ یہ کہیں کام آ جائے گا. کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں بھی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے کہ یہ کیوں پھینک دیا. لیکن ایمان کا اتنا بھی فکر نہیں کرتے جتنا ایمان کا فکر کرنا چاہیے. ایمان کا فکر کیا ہے کہ اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی عظمت کی باتیں کریں تاکہ دل میں ایمان کے لیے سب سے خوفناک فکر جو ہے، جیسے ہوتا ہے نا تیزاب ڈال دو تو آدمی کی ساری شخصیت ڈی شیپ ہو جاتی ہے. ہمارا کلاس فل ہوتا انتہائی درجے کا پاکیزہ منظر، خوبصورت، کسی نے اس کے رات کو سوئے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا. پھر اتنا خوف آتا تھا اس نے عمر بھر پھر چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹ کر چلتا پھرتا تھا، چونکہ سارا حسن ڈلک گیا، جسم کا گوشت گر گیا. ایمان کو جو جملہ تیزاب کی طرح پڑتا ہے اور آدمی کے ایمان کے چہرے کو سارا برباد کر دیتا ہے، وہ فکر میں آپ کو دہراتا ہوں. وہ فکرہ وہی عمل اختیار کرتا ہے جو برن یونٹ کے اندر جلے ہوئے لوگوں کے کھال کا وہ پڑا ہوتا ہے. ایک فکرے سے بچیں، عمر بھر کے لیے کوشش کریں ڈائریکٹ انڈائریکٹ نورانی دو میں. وہ فکرہ کیا ہے جو آدمی کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے؟ وہ فکر ہے کرتا تو اللہ ہے لیکن یہ ضروری ہے. سارے بولیں جی کرتا تو لیکن. میں پنجاب میڈیکل کالج میں MBBS کے سیکنڈ ایئر کے طلبہ کو لیکچر دے رہا تھا، ایز اے وزٹنگ پروفیسر تھا. 300 کے لگ بھگ تعداد تھی، مور اور لیس. اسپیکر پہ ان کو لیکچر ہوتا تھا. ڈاکٹر تھے، یونیک انٹیک قسم کے ذہین. میں نے کہا ایک فکرہ لکھو اور فکرہ لکھنے کے بعد چپ رہنا 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، اور فکرے کی بنت پر، گہرائی پر، مفہوم پر، ورڈنگ پر، قومے پر غور کرنا، پھر بتانا کہ فکرہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. انہوں نے کہا جی بولیں. میں نے کہا قلم کاغذ کھولیں. انہوں نے کھولا. میں نے کہا صحت تو اللہ دیتا ہے لیکن دوائی ضروری ہے. یہ کامن فکر ہے ہمارے ہاں، روز بروز چلتا رہتا ہے، دفتر میں، دکان میں، مکان میں. اور ایک ایسا جملہ مشکل نہیں تھا.
मैंने कहा लिख लिया? कहने गया मैंने कहा क्या लिखा? एक बोले कि सेहत तो अल्लाह देता है लेकिन दवाई ज़रूरी है। मैंने कहा बस फ़िक्र के मफ़हूम पे, गहराई पे, नफसियाती एतबार से, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से गौर करो, फ़िक्र ठीक है। तो उन्होंने 1-2 मिनट के लिए आंखें मटकोली, दाएं में देखा, कहने लगी ठीक है। मैंने कहा कोई एक बच्चा है जो कहे ये फ़िक्र गलत है मफ़हूम के एतबार से, जुमले के एतबार से, कौन कहे ये ठीक है? मैंने कहा अच्छा अब दूसरा फ़िक्र बोलता हूँ वो भी लिखो, इसी के नीचे, बिल्कुल इसी के नीचे लाइन में लिखो। पहला फ़िक्र ये था सेहत तो अल्लाह देता है लेकिन दवाई ज़रूरी है। दूसरा फ़िक्र ये था दवाई खाएंगे लेकिन सेहत तो अल्लाह देगा। उन्होंने नीचे लिखा। अब मैंने देखा उनकी आंखों के वाइपर हिलना शुरू हुए, चेहरे पे लकीरें आना शुरू हो गई। उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि अब ये कुछ ना क्लिक कर रहे हैं, यू टर्न लेना चाहते हैं। मैंने कहा यू टर्न लेना मुसलमान का अगर अच्छी बात है, अच्छी बात मोमिन की मीरास है, अड़ जाना मोमिन की मीरास नहीं है। अगर आप में से कोई 1-2 ये कहे कि सेकंड वन अच्छा है, ठीक है, तो फिर उसको कह दे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि पर्ची ले ली जाएगी, जमात से निकाल दी जाएगा, टिकट ले ली जाएगी, सोचो। लेकिन अगर ये फिक्रा उन्हें 2-4 बोलता, फिर 2-4 निकाल, दूसरा फिक्रा ठीक है, फिर हत्या के देखते देखते पूरा खेत का खेत उस रंग में रंग गया कि जी दूसरा फिक्रा ठीक है। अच्छा मैंने कहा अच्छा दूसरा फिक्रा ठीक है, पहला गलत है। 2 मिनट पहले पहला ठीक था, तुम्हारे नजर 100% मुत्तफिक थे कि सेहत तो अल्लाह देता है लेकिन दवाई ज़रूरी है। अब दूसरा फिक्र ये है कि दवाई खाएंगे लेकिन सेहत तो अल्लाह देगा। अब तो हमने 90 के एंगल पे यू टर्न लिया, तुमने ये कहा है कि दूसरा फिक्र ठीक है, पहला गलत है। इतना बड़ा यू टर्न लेना छोटी बात तो नहीं है। मैंने कहा आपको स्पीकर पे आके बताया कि पहला गलत क्यों है, दूसरा ठीक क्यों है, कोई फ़र्क तो होगा। एक बच्चा है, डॉक्टर ज़हीन होते हैं, एक बच्चा है, कहने लगे ये पहले, अब वो बात सुनिएगा जो उस डॉक्टर ने, मुझे अब भी याद है, कुछ सालों पहले की बात है, पंजाब मेडिकल कॉलेज, उन्होंने कॉलेज था, यूनिवर्सिटी होगी, उसके लेक्चर हॉल में बच्चे ने आकर स्पीकर पकड़ के कहा सर दूसरे फिक्रे में, पहले फिक्रे में अल्लाह पाबंद है दवाई का, दूसरे फिक्रे में दवाई पाबंद है अल्लाह की। मुमकिन है आपकी गिरफ्त में अभी फिक्र ना हो। पहला फिक्र था सेहत तो अल्लाह देता है लेकिन दवाई ज़रूरी है, तो पाबंद दवाई हो गई, अल्लाह हो गया। बोलो जी, बोलो जी। पहले फिक्र ये था सेहत तो अल्लाह देता है लेकिन दवाई ज़रूरी है, तो अल्लाह किसका पाबंद हो गया? दूसरा फिक्र था दवाई खाएंगे लेकिन सेहत तो अल्लाह देगा, तो दवाई किसकी पाबंद होगी? ईमान ये है कि कायनात में किसी चीज़ की मजबूरी, अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है, अल्लाह के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक की मजबूरी अल्लाह है, हर एक के लिए ज़रूरी अल्लाह है। अगर ये अब देखते हैं मोटरसाइकिल के प्लग में कितना कचरा आता है, कभी आप जाएँ तो मोटरसाइकिल 110 पे जा रहा है, कचरा आ गया, मोटरसाइकिल 0 पे खड़ा हो गया, आप ले जाए मिस्त्री के पास को, उसने प्लग खोला, फूंक मारी, आप कहते हैं मुझे वो कचरा दिखाएं से जो प्लग के दरमियान आ गया, तो विजिबल भी नहीं होता, विद नेकेड आई नज़र भी नहीं आता, आँख से नज़र भी नहीं आता, लेकिन उस कचरे ने मोटरसाइकिल को 0 पे ला खड़ा किया। ईमान के अंदर कभी कचरा आ जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। हदीस पाक में आता है कुर्ब क़यामत में आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम काफिर होगा, शाम मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा, उसे पता नहीं चलेगा। मैंने एक निकाह खाम के पास गया तो उसने निकाह पढ़ाया, तो बच्चे से कहा कलमा पढ़ो, दूल्हा से कहा कलमा पढ़ो। बाद में जब खाने की जगह पे इकट्ठे थे, मैंने कहा कलमा क्यों पढ़ाया? कि हुजूर ने फरमाया था क़यामत में करीब ईमान इतना कमज़ोर होगा, इतना बेवकत होगा, इतना बेहैसियत होगा कि सुबह मोमिन होगा, शाम काफिर होगा, शाम मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। क्या पता कि इस बच्चे से कोई जुमला ऐसा बोला गया हो कि स्लिप कर गया हो। मैंने कलमा पढ़ा के तजदीद ईमान कर दिया, इसलिए हुजूर ने फरमाया जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को रीन्यू करो, तजदीद क्या करो, ओवरहालिंग क्या करो, ब्रेन वाशिंग क्या करो। पूछा कैफन नुजद्दिदु ईमानना या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी हम अपने ईमान कैसे ताज़ा करें? अब कोई लिटमस पेपर ऐसा तो नहीं है जैसे बीपी का अपरेटस है, शुगर का अपरेटस है, फलां का कोई ऐसा अपरेटस है कि हम दिल से लगाएं और पता चल जाए कि ईमान सलामत है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्ब क़यामत में रात को सोने से पहले एक दफ़ा लाउडली आवाज़ में कह दिया करना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐन मुमकिन है दिन में कोई ध्यान में, बेध्यानी में, बेख्याली में कोई ऐसा जुमला बोला गया हो कि आदमी स्लिप कर गया, आदमी को तो पता नहीं चलेगा। तो जद्दिदु ईमानकुम, तो ईमान को ताकतवर बनाओ। कैसे? अक्सर बेकौल ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो कचरा कितना छोटा होता है और आदमी को, इसलिए मैं कहता हूँ एक जुमला आज की नशिस्त में ले लेना तो हमारा ईमान बच जाएगा कि करता तो अल्लाह है लेकिन ये ज़रूरी है। ये कायनात का सबसे गलीज़, मुतफ़न, बदबूदार, बेवकत, खोखला और ईमान के लिए ऐसे है जैसे चेहरे के लिए तेज़ाब है। करता तो अल्लाह है लेकिन ये ज़रूरी है। अल्लाह कहता है हर एक के लिए ज़रूरी मैं हूँ या मेरे लिए ज़रूरी मेरी मखलूक़ात है? आप बोलें जी। अल्लाह की मजबूरी है चीज़ें या चीज़ों की मजबूरी अल्लाह है? आप फरमाएं जी। मखलूक के लिए ज़रूरी अल्लाह है या अल्लाह के लिए मखलूक ज़रूरी है? बोलें जी।
सारा दिन सेहत तो अल्लाह देता है लेकिन दवाई ज़रूरी है, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है लेकिन दुकान ज़रूरी है, काम तो अल्लाह बनाता है लेकिन हीला वसीला ज़रूरी है। ये जुमले किस तसलसल के साथ, तवातुर के साथ, बेध्यानी में, रूटीन में चलते रहते हैं। अल्लाह कहता है कम बख्तो, बदनसीबो, कम नसीबो, मेरे लिए कायनात की कोई चीज़ मजबूरी नहीं है और मेरे लिए कायनात की कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। जिनको मैंने पैदा किया, वजूद दिया, शनाख्त दी, खूबियाँ दी, जिनको मैंने मारना भी है, तुम उनको मेरे लिए ज़रूरी करार दे रहे। पूरी कायनात के 7 अरब मोरलेस इंसान स्वेर किस्म के बीमार हो जाएं, डॉक्टर, हकीम, तबीब, मसीहा, और किसी के पास दवाई नहीं, और अल्लाह क्या सेहत देनी तो मिल जाएगी? बोलो जी, बोलो जी, मिल जाएगी। 7 अरब इंसानों के पास न दवाई है, न इलाज है, बीमार हैं और स्वेर किस्म के बीमार हैं। अल्लाह कहते सेहत दे दो तो मिल जाएगी? बोलो, सोच के बोलो, मिल जाएगी जी। और एक आदमी बीमार है और 7 अरब इंसान में से 6 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 तबीब खड़ा कर दो, अल्लाह कहते मैंने सेहत नहीं देनी तो मिल जाएगी। फैसला किसका चलता है? अल्लाह के लिए कोई ज़रूरी है? अल्लाह की कोई मजबूरी है? हर एक की मजबूरी अल्लाह है, हर एक के लिए ज़रूरी अल्लाह है। तो ईमानदारी से कि हमारे लिए रिज़्क़ तो अल्लाह देता है लेकिन दुकान ज़रूरी है, ये फ़िक्र है या नहीं? बोलो जी। सेहत तो अल्लाह देता है लेकिन दवाई ज़रूरी है, काम फ़िक्र है या नहीं? काम तो अल्लाह बनाता है लेकिन हीले वसीले ज़रूरी हैं, ये फ़िक्र आम है या नहीं? अल्लाह कहते हैं हीले वसीले भी करो, खाना भी खाओ, दुकान भी खोलो, दवाई भी लो, लेकिन मेहरबानी करो इन्हें मेरे लिए ज़रूरी करार न दो। इन्नमा अमरो इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरी तो चाहत का नाम वजूद है, ख्वाहिश का नाम तकमील है। अगर मेरे लिए भी कायनात की बनी हुई चीज़ें जिब्रील न अल्लाह वही दे सकता है? बोले जी, सारे बोले जी। जिब्रील न हो अल्लाह वही पहुँचा सकता है? ज़मीन में अल्लाह फसलें उगा सकता है? बारिशें, बादल में अल्लाह बारिशें बरसा सकता है? क्यों जी उगा सकता है? पानी में अल्लाह प्यास बुझा सकता है? तो पता ये चला कि भरी कायनात में चूंडी से जिब्रील, कतरा से कुलज़म, कंकर से पहाड़, ज़र्रे से सहरा, काबा के रब की कसम, अल्लाह की मजबूरी। बोलो जी, अल्लाह के लिए ज़रूरी, हर एक की मजबूरी, हर एक के लिए ज़रूरी। ये अगर फिक्र दुरुस्त कर लिया तो प्लग का कचरा निकल जाएगा, वरना गैर महसूस अंदाज से ये पोल्यूशन आ जाती है, प्लग में कचरा आ जाता है, और वो जो ईमान की रफ्तार 100 रफ्तार चल रही होती है, वो आदमी गिर के ज़मीन पे पड़ा होता है। अब ये कैसे दूर हो, इसमें के लिए जो नुस्खा कीमिया है वो यही है जो अब्दुल्ला बिन रवाह कहा करते थे, ताल नो में नो बेरबिन असा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे साहबी मुआज़ बिन जबल से कहते, मुआज़ आओ जरा ईमान ताज़ा करें। अल्लाह के महबूब मौजूद हैं, जिब्रील आ रहे हैं, कुरान उतर रहा है, मदीना में दीन मौजूद है, बाज़ारों में, घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में, चौकों में, चौराहों में, खेतों में दीन पूरा मौजूद है। और उमर रज़ी अल्लाह जैसा इंसान, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह जैसे इंसान को कह रहे हैं मुआज़ आओ जरा ईमान मजबूत करें, थोड़ी सी अल्लाह की बातें करो। तो इस दौर में अल्लाह की बातें कोई नहीं, अल्लाह के तज़किरे कोई नहीं, अल्लाह का जिक्र कोई नहीं, अल्लाह के मुज़ाकरे कोई नहीं, अल्लाह की तालीमात कोई नहीं। नतीजा ये है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। और इस ईमान के ज़ोफ़ की इंतहा क्या है? जैसे कहते हैं ना, ये टेम्परेचर 102 पे चला गया, 3 पे चला गया, किस टेम्परेचर पर जाकर वेंस फट जाती हैं, रगें से खून निकल आते हैं, वो आपको पता होगा। 104 है, 5 है, 6 है। ईमान के ज़ोफ़ की इंतहा क्या है? यानी एक आदमी क्या, मेरे पास ईमान, हदीस में आता है अल ईमान यज़ीदु व यनक़ुस, ईमान घटता भी है बढ़ता भी है। बढ़ता बढ़ता कहाँ चला जाता है? घटता घटता ईमान कहाँ आता है? उसकी मैं आखिरी बता देता हूँ, जिसके नीचे ईमान के घटने की कोई जरिया नहीं है, वो ये है कि आदमी के सजदों में बुरे ख्याल हैं। इसके बाद काबा के रब की कसम, ईमान के ज़ोफ़ की इंतहा कोई नहीं। जैसे पाकिस्तान करेंसी में आखिरी नोट कौन सा है? बोलो जी, 10 रुपये है ना, ये 10 रुपये कह रहे हैं। इससे हम कहेंगे करेंसी में नोट छोटा कोई नहीं, क्योंकि इसके बड़ा दुनिया में निज़ाम तालीम की आखिरी डिग्री क्या है? कि पोस्ट डॉक्टरेट है, इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं। ईमान सबसे छोटी डिग्री क्या है? कि प्रेप है। आखिरी क्या है? कि पोस्ट डॉक्टरेट है। ईमान के ज़ोफ़ की कमज़ोरी, वीकनेस की इंतहा क्या है? कि आदमी के सजदों के अंदर मखलूक़ात के गंदे ख्याल आना शुरू हो जाएं, तो इसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। इसका ईमान नज़र के आलम में है, किसी वक्त भी ईमान से फिसल कर दूसरी तरफ जा सकता है। अब मैं और आप सोचें कि हम किस आलम में? मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। जब ईमान यहाँ आ जाए कि सजदे जो मेराज हैं, अस्सलाम मेराजुल मुमिनीन, जैसे आमना के लाल का मेराज हुआ, उम्मत का मेराज क्या है? नमाज। और नमाज का मेराज क्या है? सजदा। सजदों में आदमी, हदीस में आता है कि अल्लाह के 2 कदमों के दरमियान सर रख देता है। तो आदमी नमाज में बावुज़ू, मस्जिद में, मोमिनीन के हल्के में वुज़ू करके सजदे में अल्लाह के 2 कदमों के दरमियान शोहरत को, शावत को, आराम को, इंतकाम को, जुल्म को सोच रहे हैं। इससे ईमान की कमज़ोरी का खुर्दबीन से भी नीचे नहीं रख देते।
अब अगर इस मुकाम पे आ गया तो इसके बाद मौत ही मौत है, इर्तदाद है, जुल्म है, किसी वक्त भी चिराग बुझ सकते हैं। हर आदमी खुद एनालिसिस कर सकता है कि आपका ईमान का लेवल यहाँ तक आ गया कि मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। अब इसको ताकतवर कैसे बने? डॉक्टर कहते हैं ना जी कि फलां कलेजी खाओ जी, जामुन खाओ जी, अनार खाओ जी, पालक खाओ जी, होता है ना फलां चीज़ की कमी के लिए। इसका तरीका क्या है ईमान की कमज़ोरी से निकलने का? दो तरीके हैं, मुताले आयात, मुशाहिदा कायनात। ये दो चीज़ें हैं जो आदमी के ईमान को बचा लेती हैं। मुताले आयात, कुरान की आयत। ज़फ़र अली खान कहता है ये जिनस नहीं ईमान जिसे ले आएँ दुकान फ़लसफ़ा से, ढूंढे से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपारों में। ईमान बढ़ाना है तो अखबार नहीं, नावल नहीं, तारीख नहीं, हिस्ट्री नहीं, फलानी। ईमान के बढ़ाने का सबसे उम्दा टॉनिक और जाम क्या है? कुरान की आयात। ये जिनस नहीं ईमान जिसे ले आए दुकान फ़लसफ़ा से। हर आदमी के घर में कुरान मौजूद है, आयात मौजूद हैं, तराजे मौजूद हैं, तफासिर मौजूद हैं। रोज़ाना की बिना पे ईमान बढ़ाने की नीयत से टॉनिक के तौर पर, ताकत के तौर पर कि मैं ईमान के उस ज़ोर पे हूँ, इसका एनालिसिस आदमी कर सकता है या अल्लाह कर सकता है। सेकंड वन कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। मेरी नमाज के सईद मैं बैठा था हरम में, बाबुल अजीज़ से दाखिल हुए, मेरे साथ एक दोस्त था जंग का। हमें इत्तफाकन धक्के लगते लगते उन दिनों हतीम के अंदर बैतुल्ला का वो हिस्सा जो छता हुआ नहीं है उसके अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिल गया। अब इससे बड़ी क्या बात क्या है कि हम पाकिस्तान जंग से उठे, सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से निकले मक्का गए, मक्का से निकले बाबा अब्दुल अजीज़ गए, बाबा अब्दुल अजीज़ निकले मुताफ गए, मुताफ से धक्का लगा हतीम में गए, हतीम अनछता हिस्सा। फिर हमारे सर के ऊपर मिजाब रहमत था, वो परनाला जब बैतुल्ला की छत पे बारिश बरसती है तो उस परनाले से जब बारिश हतीम में आती है उस परनाले को अरबी में मिजाब रहमत कहते हैं। मिजाब रहमत हमारे सर पे है। जोग्राफियाई फासले यूं मिट चुके हैं कि हमारा सर बैतुल्ला की दीवार से। हमने 2 नफल पड़े, बाहर निकल के आए, बाबा अब्दुल अजीज़ पे आके बैठे तो मैंने दोस्त से पूछा आज मिजाब रहमत के नीचे हतीम के दरमियान सजदों में क्या सोच रहे थे? अब देखो कितनी बुलंदी मिली। मिजाब रहमत, हतीम, यानी ईमान का ज़ोफ़ का आलम देखें। मैंने कहा मिजाब रहमत के नीचे हतीम के अंदर नफलों में क्या सोच रहे थे? मुझे कहने लगे मुझे शर्म आती है बताते हो जो मैं सोच रहा था। तो अगर कोई आदमी महसूस करे कि मेरी नमाजें आवारा हैं, आलूदा हैं, पलूट हैं, गलत ख्यालात से भरी हैं, तो उसको दुनिया में जितने भी काम है, शादी है, बिजनेस है, काबा के रब की कसम सबसे बड़ा काम है ईमान को मजबूत करना। बाकी जितने कामों में लगा वो फजूल कर ले, ला यानी कर रहे। उसको सबसे पहले ज़रूरी है कि ईमान को जान कोनी के आलम में, नज़र के आलम में हल्का सा झटका लगे और ईमान। तो मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। अब इसका तरीका क्या है? ईमान को मजबूत करने का विटामिन क्या है, ताकत क्या है? आपको डॉक्टर साहब वीकनेस बढ़ी है। एक बूढ़ा गया ना डॉक्टर के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे खांसी बढ़ी है। तो डॉक्टर साहब चेक कर कहा वीकनेस बढ़ी है। उसने कहा जी खट्टे डिकार आते हैं कि वीकनेस बढ़ी है, कि चलता हूँ सर चक्कर आता है कि वीकनेस बढ़ी है, कि नींद पूरी नहीं आती कि वीकनेस बढ़ी है, कि चीज़ों भूल जाता हूँ कि वीकनेस बढ़ी है, कि जिसमें दर्दें होती रहती। उसने जब देखा ना कि हर जवाब बात का जवाब डॉक्टर साहब वीकनेस वीकनेस वीकनेस, तो उसने डॉक्टर साहब को नामजद गाली दी। डॉक्टर साहब ने कहा ये भी वीकनेस है। क्या जी? ये भी वीकनेस है। उसने तंग आके कहा नहीं हर बात वीकनेस, खांसी वीकनेस, हड्डियाँ वीकनेस, दर्द वीकनेस। तो उसने तंग आके कहा इसको जवाब ही कोई नहीं। उसने कहा डॉक्टर साहब तेरी है। उसने कहा बाबा ये भी वीकनेस है, अगर वीकनेस ना होती तो तू ये नहीं कहता। दुनिया के हर मर्ज का सबब ईमान की वीकनेस है। इसके अखलाक अच्छी नहीं है कि ईमान कमज़ोर है, इसके मामलत अच्छी नहीं है कि ईमान कमज़ोर है, इसकी इबादत अच्छी नहीं है कि ईमान कमज़ोर है, इसका लेन देन अच्छा नहीं है कि ईमान कमज़ोर है, इसकी सोचें अच्छी नहीं है कि ईमान कमज़ोर है, इसका देखना अच्छा नहीं है। काबा के रब की कसम हर बुराई का सबब वीकनेस ऑफ ईमान है। ईमान मजबूत है तो आदमी में ताकत आती चली जाती है, उसके बोल में, लहजे में, अखलाक में, जज्बात में, एहसासात में, कैफियत में। ईमान मजबूत करें। और अगर एक आदमी ईमानदारी से अपने मुहासबा करके कहता है मेरे सजदे बैतुल्ला के, मस्जिद के, नमाज के, फ़र्ज़ के, उसमें आलूदगी है, ख्यालात की आवारगी है, तो उसको दुनिया के तमाम कामों से हटकर सबसे पहले ईमान ताज़ा करने चाहिए। अब ईमान ताज़ा कैसे? तो उसके मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। दोनों तरीके अप्रोचेबल हैं, एप्लीकेबल हैं दस्तरस में। सबसे पहला तिलावत आयात। क्या फरमाया जी? अर्ज़ की बोले जी। कुरान मजीद के ज़ेर में, ज़बर में, शद में, मद में, जज़म में, आयात में, तरतीब में, तंजील में आज तक 14 सदियों के बाद कोई एक राई का भी ऊंच नीच नहीं कर सका। खालिस ताने का जैसे उतरा था वैसे मौजूद है। हदीस में लोगों ने मिला दिया, तारीख में लोगों ने मिला दिया, सीरत में लोगों ने मिला दिया, ज़ाती ख्वाहिशात पैदा कर दी। लेकिन कुरान का मतन, कुरान की वर्डिंग, कुरान की आयात, उसके ऊपर अल्लाह ने पहरा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जितना टानिक, ताकत, विटामिन, कुव्वत कुरान मजीद की आयात में है, कायनात की किसी चीज़ में नहीं है। तो एक तो यह है कि कुरान की आयात रोज़ाना पढ़ें, समझ के पढ़ें
اور بہتر ہے، تفسیر سے پڑھیں اور بہتر ہے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں صبح دوپہر شام، تو وہ اس جانتا ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے کے بعد پھر مرض آ جائے گی، پھر اس کو دباؤ، پھر 6 گھنٹے، ڈاکٹر کہتے ہیں صبح شام، تم جانتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں صبح ایک دن میں ایک دفعہ، ڈاکٹر کہتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ، تو وہ جانتا ہوتا ہے اس مرض کی، اس دوائی کی تاثیر جانتے ہیں۔ بعین ہی قرآن مجید کو روز کی بنیاد پہ وہ شخص اپنے لیے فرض عین کر لے جس کے سجدے آوارہ ہیں، بے وقت ہیں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ میری داڑھی، میرا چلہ، میری جماعت، میرا سب اپنی جگہ، لیکن آسمان والے نے اس کو نہیں دیکھنے کہ تمہارے سجدے کیسے تھے۔ پہلے سجدوں کو طاقتور بنانے کے لیے قرآن مجید روز کوشش کریں گے جی، کیوں جی کوشش کریں گے نا، جتنا ہو سکے روزانہ طے کریں، رکوع طے کریں، آدھا پارہ طے کریں، 2 رکوع طے کریں، لیکن کوئی دن ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ، اور اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں، اور گنگی ہو جائے وہ زبان، جس کو روزانہ کے بنا پہ ہر چیز دیکھنے کو موقع ملے، نہ قرآن کو چھو سکے، نہ قرآن کو دیکھ سکے، نہ قرآن کو پڑھ سکے، نہ قرآن کو سینے سے ہاتھ لگائے۔ آنکھ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن دیکھے، زبان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھے، کان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن سنے، ہاتھ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو مس کرے۔ دنیا میں اس سے بڑا غریب، مفلس، کنگال اور کم نصیب شخص کوئی نہیں جس کے 24 گھنٹے گزر جائیں اس کو قرآن کو نہ دیکھنے کا، نہ سننے کا، نہ مس کرنے کا، نہ چومنے کا، نہ سینے سے لگانے کا موقع ملے۔ ایک طریقہ یہ ہے ایمان کو تازہ کرنے کا، جان کرنے سے نکالنے کا، نظر سے نکالنے کا، کیونکہ میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے، میرے ایک دوست کو ڈاکٹر کے پاس ایڈمٹ کیا کہ اس نے کہا جس کو انیستھیزیا نہ دو، کیوں کہ اس میں فلاں چیز کی ویکنیس ہے، کوئی نام بتایا، اور یہ بے ہوشی سے ہوش میں کبھی نہیں آ سکے گا، پہلے 14 دن کی یہ میڈیسن دو۔ جس آدمی کا ایمان کمزوری میں ہے اس کے اوپر کوئی عبادات کی نہیں جا سکتی، کوئی نیکی اس کو دی نہیں جا سکتی، کیونکہ نیکی تو اٹھائی جاتی ہے ایمان سے، اور ایمان ہے اتنا کمزور کہ سجدوں کے اندر نماز کے خیالات بھی آوار ہیں۔ دوسرا طریقہ ایمان کی مضبوطی کا، قوت کا، طاقت کا اور افزونی کا کیا ہے؟ مشاہدہ کائنات۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آتا ہے کأَیٍّ مِّن آیَةٍ فِی السَّمَاءِ، اس کو غور سننا، کأَیٍّ مِّن آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْہَا وَهُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ، آخری صفحہ ہے سورہ یوسف کا آخری صفحہ، وَمَا يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ میں نے اپنی ذات کی طرف رخ پھیرنے کے لیے کائنات میں کتنی چیزیں بکھیر دی، ہوا میں اڑنے والی، زمین پہ رینگنے والی، زمین پہ اگنے والی، رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں، رنگوں میں کتنی چیزیں بنائیں۔ یہ اللہ کی ساری آیتیں ہیں۔ ایک آیتیں وہ ہیں جو 30 پاروں کی 6666 آیات ہیں۔ ایک آیت کو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کہتا ہے یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں یہ بھی میری نشانی ہے۔ کأَیٍّ مِّن آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں کھربوں آیتیں میں نے بکھیری، وَهُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ یَمُرُّونَ عَلَیْہَا وَهُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ، وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو سونگتے بھی ہیں، ان کو چکھتے بھی ہیں، ان کو مس بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے یاد نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہی مومن آسمان کی دنیا میں مشرک ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کا دوسرا طریقہ یہ کہ جس چیز کو دیکھیں، ہوا کا پرندہ ہو، زمین کی جڑی بوٹی ہو، بہتا ہو دریا ہو، اٹھتا ہو بڑھتا ہو سورج ہو، ڈوبتا ہو چاند ہو، رات کے ستارے ہوں، بیوی کا چہرہ ہو، بچے کی عادات ہوں، ایک سالن کی پلیٹ کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں بکھری پڑی ہیں۔ آج رات جا کے سالن کی پلیٹ کو دیکھنا، یہ جو سالن بنے اس سالن کو میرے ذات تک، چارپائی تک لانے میں کتنی چیزیں ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ آدمی کا سر نہیں اٹھ سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے جو اتنی چیزوں کو دیکھے اور مجھے یاد نہ کرے یہی مشرک ہیں۔ تو دوسری کوشش یہ کریں کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں اس کو زبان سے کہیں اس کو میرے اللہ نے بنایا۔ کیا کہنا جی؟ یہ کدو ہے، بھنڈی ہے، توری ہے، آم ہے، انار ہے، بلبل ہے، چیتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، رنگ ہیں، خوشبو ہیں، بادل ہے، کوسے قزا ہیں، پہاڑ ہیں، پربت ہیں، صحرا ہیں، وادیاں، جنگل ہے، دریا ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، موسم ہے، گرمی ہے، تلخی ہے، سردی ہے، جانور ہے، بھینس ہے، جتنی چیزیں اور ارد گرد بکھری پڑے، اربوں کأَیٍّ مِّن آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانی ہیں جس کو تم گن نہیں سکتے۔ یمرون علیہا، گزرتے ہو، وہم عنہا معرضون، منہ موڑ لیتے ہو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس میں وٹامن اے ہے، اس میں وٹامن بی ہے، اس میں وٹامن سی ہے، یہ گردے کے لیے، جگر کے لیے، پھیپھڑے کے لیے، یہ مہنگی ہے، یہ ذائقہ میٹھا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ آم کی گٹھلی جب کاشت کی جاتی ہے تو کڑوی، آم کی پہلی کومپل نکلتی ہے تو کڑوی، آم کا تنا بنتا ہے تو کڑوا، آم کی شاخیں نکلتی ہیں تو کڑوی، آم کے پتے لگتے ہیں تو کڑوے، آم کا بور لگتا ہے تو کڑوا، آم کی املی بنتی ہے تو کڑوی، املی کی چھلکا ہوتا ہے تو کڑوا، املی کا سفید گودا ہوتا ہے تو کڑوا، املی کے اندر چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے تو کڑوی، جڑ سے نکل کر چوٹی تک زہر زہر۔ پھر جون کا مہینہ آتا ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے، ذائقہ بدلتا ہے، خوشبو بدلتا ہے۔ 5 کلو آم لا کر بالٹی میں ڈال کر انگلیوں کے پوروں سے نرم کر کے ڈھکن کھول کے زبان پہ جب ڈالتے ہیں تو لگتا ہے یوں ہے کسی نے دودھ، خوشبو
खुशबू और शहद का हसीन मशरूब बनाकर मेरी ज़ुबान पे डाल दिया। अल्लाह कहते हैं इस आम को देख कर ये कहते हो ज़ायका बड़ा अच्छा है, टेस्ट बड़ा अच्छा है, सस्ते मिल गए, पागलो ये भी कह दिया करो सुबहान अल्लाह। बोलो जी क्या करो, ईमानदारी से कहो, झूठ नहीं बोलना, बैर तुम बोल लेते हैं। हमने कितनी दफ़ा आम को खाते हुए कहा सुबहान अल्लाह, तो आसमान का नीला दरवाज़ा देखता रहता है। कभी तो ये आम को देखकर, सब्जी को देखकर, बीवी को देखकर, बहन को देखकर इतने रास्ते बिखेरे, जिस तरह दुकानदार के पास जाते हैं ना, कपड़े वाले के पास, मुझे कपड़ा चाहिए, वो बने समरे थान बिखेर देता है, 10-10 गज खोल देता है, ये खोल, ये क्यों खोलता है? अखलाकी एतबार से हमें वो कायल कर रहा होता है कि तुम्हारी खातिर मैंने बने समरे बिखेर दिए, न भी लेना चाहें तो ले लेते हैं। अल्लाह कहता है तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ फेरने के लिए मैंने कितने थान बिखेरे हैं, फलों में, ज़ैकों में, रंगों में, खुशबुओं में, बादलों में, कड़क में, चमक में, और लेकिन कभी तो तुम कह दिया करो क्या, बोलो जी कभी। ये जो कायनात को देख के सुभान अल्लाह कहता है, हदीस पाक में आते फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा पे बैठे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम 7वें आसमान से ऊपर, घर है जिब्रील का, उसको सिदरत ड्राइंग रूम जो उसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, 7वें आसमान से ऊपर, उससे ऊपर आलम ला मकान, वहाँ बैठे थे। तो याकूब के बेटे ने, याकूब के छोटे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को धक्का दिया कुएं के अंदर, कुएं के अंदर धक्का दिया तो कुएं की मुंडेर से धक्का, जहाँ पानी गिरना था 10 फुट 15 फुट 20 फुट का फासला होगा, तो अल्लाह ने वहाँ जिब्रील को कहा कि इससे पहले कि यूसुफ कनान के वीरान कुएं के पानी से मस करे, तुम सिदरतुल मुंतहा से चलो और जाके पहुँच कर नीचे पर रख दो, और यूसुफ के नीचे नूरानी पर। तो कहाँ सिदरतुल मुंतहा? सूरज कितना ज़मीन से? 9 करोड़ 30 लाख मील दूर, महरन फलकियात के बकौर सूरज है। उससे पहला आसमान कितना, दूसरा कितना, तीसरा वगैरह वगैरह। उसके ऊपर जिब्रील का ड्राइंग रूम 7 आसमानों के ऊपर यूं ड्राइंग रूम फैला हुआ है जिस तरह पूरी ज़मीन के ऊपर चींटी होती है। हदीस में आता है पूरी ज़मीन पे एक चींटी चले तो कितनी जगह घेरती है, तो एक चींटी पूरी ज़मीन पे। तो जिब्रील के घर के नीचे 7 आसमान यूं लगते हैं जिस तरह एक चींटी ज़मीन पे रेंग रही हो। वहाँ से जिब्रील चले हैं 7 आसमानों को चीर कर कनान के कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम का 10 फुट 15 फुट 10 गज के फासले पे गिरने से पहले नीचे आके पर रख दिए। फिर दाद तलब निगाहों से आसमान को देखा कि अल्लाह तेरे हुक्म की तामील में जिब्रील सिदरा से लेकर कनान के कुएं तक कितना जल्दी पहुंच गया। तो अल्लाह करीम ने यह कहा कि जिब्रील इतना जल्दी तू सिदरतुल मुंतहा से कनान के कुएं तक नहीं पहुंचता जितना मोमिन दूध को देखकर मेरे तक पहुंच जाया करता। जब हम दूध पीते हैं भैंस के थनों से, इन्ना लकुम फिल अनामि लाइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही बैन फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारीन। दूध भैंस को क्या पिलाया? दुनिया के किसी साइंटिस्ट को हमने भैंस को वंडा दिया, चारा दिया, गंदा पानी दिया, खुश्क घास दिया, इससे तुम दूध निकाल के दे, तो दुनिया का कोई साइंटिस्ट इस रॉ मटेरियल से, खाम माल से दूध नहीं निकाल सकता। मोमिन जब शाम को भैंस के नीचे बैठता है, काली भैंस, सफ़ेद दूध, सुर्ख खून, सब्ज गोबर, उसके जब नीचे नारे मारता आता है, मोमिन दूध को कहता है सुबहान अल्लाह। तो जिब्रील इतना सिदरा से कनान के कुएं में नहीं पहुंचा, मोमिन जितना भैंस के थनों से अल्लाह तक पहुंच गया। इसको कहते हैं फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। हमारे ईमान की मजबूती के दोनों चश्मे बंद हो गए। तिलावत आयात रोज़ बरोज़ कम से कम तर होता चला जा रहा है। मैंने एक आदमी से पूछा क्या तरीका है, कहने कि 21। मैंने कहा यकीन कहने कि मेरा 21वां पारा है, रोज़ाना मैं 21 एक पारा पढ़ता हूँ, तो आज मेरा 21वां पारा, तो मेरा मुकम्मल हो गया 21 तारीख है। एक ज़माना था लोग तारीख कुरान से बताते थे। अब अगर डिजकोड में एक फॉर्म तकसीम करें कि कितने लोग हैं जो रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं, तो डिजकोड की आबादी अगर 10,000 मिसाल दे रहा हूँ शुमार कीजिए, तो आपका क्या ख्याल होगा? रोज़ाना बूढ़े, औरतें, बच्चे, बालिग कितने को जो कुरान। तो ईमान यही न हो कि मेरे शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। और कितने लोग हैं जो बाज़ार की सब्जियाँ, बाज़ार के गोश्त, बाज़ार के फूल, मौसम, उसको देखकर कितने मुसलमान हैं जो ज़ुबान से सुबहान अल्लाह कहते हो। मुसलमानों को छोड़ दो, अपने ऊपर क्यास कर लो कि मैंने कितनी दफ़ा सब्जी को, फल को, फूल को, मशरूब को, हत्या कि बीवी को, बेटे, देखो ना कुदरत ने फुफो के अंदर और ज़ायका रखा है, माँ के अंदर और खाला के अंदर, और हर एक को देखकर जज्बात के एक नया चश्मा उभर उठता है। बेटी को देखकर नूरानी फरिश्तों के पार आ जाते हैं, बहन को देखकर जन्नत की याद आती है, बीवी को देखकर जज्बात उरूज पे होते हैं, माँ को देखकर पूरा वजूद बिछने को दिल करता है। ये जो सारे गोश्त पोश्त के वजूद हैं, इनके साथ जज्बों की जो अलग लहरें पैदा होती हैं। हमने कभी देखकर इन रिश्तों को देखकर सुबहान अल्लाह कहा, तो नाम फलों को, इसको अल्लाह कहता है कितनी निशानियां जो हमने बिखेर दी ताकि ज़ालिमों तुम्हारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकले। क्या निकले जी? बोलो बोलो जी क्या निकले? वो नहीं जो कहते हैं एडवांस सुबहान अल्लाह को फिर एक जुमला दूंगा, वो नहीं।
आवर्द नहीं, आमद, वो नहीं जो मिसालें लगा के आम पकाते हैं, वो जो आम टपका होता है ऊपर तैयार हो के, आदमी दिल की गहराइयों से देखे कि मछली अंडे से लेकर पकड़े जाने तक बहते दरियाओं के दरमियान, और रात को खाई तो जग पास लेके पूरा सोया और पूरे जग को ख़त्म करना पड़ा, ठंडे पानियों में गर्म तासीर। और तरबूज डेजर्ट के अंदर रेत के महीने में, रेत के ऊपर जून के महीने में तैयार हुआ और खाया तो जिगर में ठंडक पहुंच गई। कितने लोग हैं जो तरबूज इस दफ़ा कितने खाए होंगे, मेरा ख्याल है मेरे समेत आपने, कितने लोग होंगे सर्दी मछली खाई होंगे, और कितने लोग होंगे जिन्होंने मछली को खा के सुभान अल्लाह कहा होगा और तरबूज को खा के, तो फिर नतीजा यही है विटामिन भी ठीक है, गुर्दे भी, लेकिन जिस आदमी की रूह ठीक नहीं उसके जिस्म का कोई निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, मिस यूज़ होता है। हमारी आंखें ख़राब, ज़ुबान ख़राब, वजह क्या है कि ईमान को मजबूत करने वाले दोनों चश्मे करीबन करीबन खुश्क हो चुके हैं, हालांकि दोनों चश्मे आम हैं। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को नज़रा देख। तो कुदरत ने हर इंसान के ईमान को मजबूत करने के लिए फयाजी के साथ सखावत, दुनिया के लिए कोई इंसान नहीं कर सकता मेरे पास गरीब था, मेरे पास तो ईमान को मजबूत करने के लिए फैली हुई कायनात नहीं थी, आसमान को देखने के लिए, तारों को देखने के लिए, सूरज को देखने के लिए, बादलों को देखने के लिए, माँ को देखने के लिए, और फल खरीद नहीं सकता, देख तो सकता है, सब्जियाँ खरीद नहीं सकता, देख तो सकता है, मटन खरीद नहीं सकता, देख तो सकता है, गोल्ड आदमी देख तो सकता है। तो ईमान को ताज़ा करने के लिए खरीदना नहीं, देख के कहना क्या ज़रूरी है, जी बोलो भाई। ये एक कोशिश करें आज के बाद यकीन के साथ मखलूक को देखकर उससे निकलें, जो कहते हैं कुरान में सूरह यूसुफ में आता है, कितने मोमिन हैं जो मुशरिक हैं, कैसे कि इतनी चीज़ों को देखते हैं, उनकी ज़ुबान से उनकी तारीफ़, रंगत, ज़ायका, विटामिन, ताकत आती है, लेकिन कैसे जालिम है, नीले आसमान का बूढ़ा दरवाज़ा कहते हैं एक दफ़ा तो कह दो, लेकिन हम नहीं कहते, इसलिए हमारा ईमान कमज़ोर है, नज़र के आलम है। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी, वरना मैं चाह रहा था कि सूरह मरियम पढ़ता, सूरह बकरा पढ़ता, जिसमें अल्लाह ने आयात, जब मैंने चाहता कि आपको मुशाहिदा कायनात बतलाया, मुतालिया आयात और मुशाहिदा कायनात, ये दो बेहतरीन विटामिन हैं ईमान को ताज़ा करने के। आप घर बनाओ, मकान बनाओ, क्लिनिक बनाओ, दफ्तर बनाओ, घर, खेत खलियान बनाओ, पैसे बनाओ, रकबा बनाओ, सब मुबारक हो, इसमें इनकार नहीं, लेकिन अगर ईमान के बगैर बनाया तो ये सारी चीज़ें नुकसान होगी। इस दौर में जितनी चीज़ों के पास, लोगों के पास सहूलियात हैं, उतने परेशान हैं, वालिदैन औलाद से, बीवी बच्चों से परेशान। वजह क्या है, हमारे पास डिग्रियाँ भी हैं, ओहदे भी हैं, ग्रेड भी हैं, पैसे भी हैं, एजुकेशन भी है, शर्क़ गर्ब की मालूमात भी हैं, लेकिन हमारे पास मजबूती है, ईमान नहीं है, बॉडी बिल्डर हैं, चौड़ा चकला वजूद है, ताकतवर जिस्म है। लेकिन अल्लाह कहते हैं मोमिन वो है जो अल्लाह की आयात को पढ़ता है और अल्लाह की फैली हुई कायनात को पढ़ता है। हम न आयात को पढ़ते हैं, न मुशाहिदा कायनात, न तिलावत आयात। नतीजा ये है हमारे अखलाक, इस्लाम की 5 शाख है ना, अकायद की शाख, इबादत की शाख, मामलात की शाख, अखलाकियात की शाख, मुआशरत की शाख। वालिदैन तरस गए बच्चों से ठंडक लेने के लिए, बीवी तरस गई शौहर से मोहब्बत लेने के लिए, दुकानदार, आप यकीन जाने मुसलमानों की बस्ती में कहीं सुकून नहीं है, और इस बेसुकूनी की वजह क्या है, वीकनेस 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 वीकनेस। और वीकनेस क्या है, ईमान की वीकनेस, यकीन की वीकनेस। करता तो अल्लाह है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये फ़िक्र दफ्तर में भी है, दुकान में भी है, खेत में भी है, ऐवान में भी है, घर में भी है, दफ्तर में भी। तो जो आदमी भरी कायनात में मिट जाने वाली मखलूक़ात को अल्लाह के लिए ज़रूरी करार दे, मर जाना बेहतर है, आग में चले जाओ। इस जुमले को, और इस जुमले को मजहबी फ़नकारों ने पेट का दोज़ख भरने के लिए, लोगों की आबरू से खेलने के लिए ये जुमला आम किया, करता तो अल्लाह। मैं हरम में बैठा था तो एक आदमी ने कहा, जब एक आदमी कहता है दुनिया के बादशाह तक पहुँचना हो तो डायरेक्ट चले जाते हो या हीले वसीले लेते हो। एक आदमी वज़ीर आज़म ने इमरान खान साहब को मिलना चाहता है, आरिफ अली साहब को मिलना चाहता है, थोड़े है कि यहाँ डिजकोट से रात को बस पकड़े, सुबह फैसला इस्लामाबाद चले जाए, बनी गाला मिल के जाए, 20 में रास्ते। तो एक दुनिया में एक दुनिया के बादशाह तक अप्रोच करने के लिए उठ के डायरेक्ट चले जाते हो, कहने लगे नहीं, तो कहें जो कायनात का बादशाह कैसे वो उस तक डायरेक्ट चले जाओगे। कहने लगे जो दुनिया के बादशाह को, अल्लाह जैसे बादशाह को दुनिया जैसे बादशाह से तशबीह देता है, वो उसी वक्त पक्का हिंदू की तरह काफिर हो जाता है। अल्लाह जैसे बादशाह को दुनिया जैसे जिसको गुस्सा आता है, पेशाब आते हैं, कीना आता है, खून आता है, नापाकी आते हैं, जो खाता है, पीता है, सोता है, पैर घरों में चलते हैं, इस जैसे बादशाह को अल्लाह जैसे बादशाह, जिसका बाप कोई नहीं, बेटा कोई नहीं, बीवी कोई नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, ऊँगता नहीं, उसको तशबीह दे, उससे जो बीवी रखता है, बाप रखता है, माँ रखता है, भाई रखता है, खाता पीता है, तो जो अल्लाह जैसे बादशाह को दुनिया जैसे बादशाह से तशबीह दे के बात चलाता है, उसी वक्त काबा के रब की कसम पक्का काफिर हो जाता है, क्योंकि उसने अल्लाह को तशबीह दी दुनिया के एक नाकिस तरीन बादशाह से।
बाकी ये बात क्या करोगे। तो मजहबी फनकारों ने पेड़ का दोज़ख भरने के लिए ऐसी गलीज किस्म की मिसालें तशबीह दी, जिससे ईमान कमज़ोर हुआ, और ईमान कमज़ोर हुआ फिर दुकानदारों में ईमान चला गया, ताजरों में ईमानदारी चली गई, काश्तकारों में नरमी चली गई, हुक्मरानों में रहम चला गया, बड़ों में शफकत चली गई, मुलाजमीन में पाकीज़गी चली गई, उमरा में सखावत चली गई, और नौजवानों के अंदर हया चला गया। इस वक्त उजाड़ है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान इराक का ढेर है, महरम रिश्ते अपनी बच्चियों से बेहयाई करने पर आमादा हो गए। आप सुनते होंगे चाचा और भतीजे की बात, मामू और भांजी की बात, भाई और बहन की बात, बाप और बेटी की बात। इस दर्जे की दरिंदगी बात जानवरों में नहीं होती। ये वो मुकाम अर्जल है, मुकाम गलाजत है, जिस पे इंसानियत तरस जाती है कि ये हुआ। मैं ऐसे चचा को जानता हूँ जिन्होंने भतीजी के साथ बुरी नज़र की, ऐसे भाइयों को जानता हूँ। तो ये क्यों, ये गलाजत, इसका इलाज FA नहीं, BA नहीं, MA नहीं, लिटरेसी रेट नहीं, इसका इलाज इकबाल कहते हैं अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी गिला। तो ये उसका इलाज क्या है, ईमान ईमान ईमान, अल्लाह की ज़ात को सोचना, अल्लाह की, और अल्लाह की ज़ात को इब्न रवा रज़ी अल्लाह ताल नोमिनो बिरब्बिना सा, और अल्लाह पर ईमान लें। क्यों, नज़्कुरुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह की बातें करें। क्यों, इन्नल क़ल्ब असरा व तक़ल्लुब मिनल क़िद्र इज़ा इस्तजमत ग़लियानहा, अल्लाह की बातें न करें तो हंडिया के नीचे से आग खींच लें तो हंडिया ठंडी हो जाती है। अल्लाह की बातें न करें तो ईमान फरीज़ हो जाता है, और फरीज़ ईमान में न अखलाक होते हैं, न हया होते हैं, न इबादत होती है, न नरमी होती है, न पाकीज़गी होती है, न सखावत होती है। एक मिट्टी का मुजस्मा है, सोने की टेल है, एक ढीला है, उसमें ताकत कोई नहीं। तो आइए भाइयों कोशिश करें, दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। ईमान सबसे कायनात की ताकतवर चीज़ है, नहीं है तो आदमी मकड़ी का जाल है तो आदमी फ़िरौन वक्त से टकरा जाता है। ईमान जैसी कीमती जिन्स आसमान और ज़मीन के दरमियान कोई नहीं। ईमान बढ़ाने का तरीका वाहिद क्या है, मुतालिया आयात और मुशाहिदा कायनात। मुतालिया आयात के लिए कुरान आपके घर में मौजूद है, और मुशाहिदा कायनात के लिए खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इतनी निशानियाँ पड़ी हैं, इतने रंग पड़े। अल्लाह कहते हैं बेरंग ज़मीन से रंग, बेज़ैका ज़मीन से ज़ैका, और बग़ैर खुशबुओं के ज़मीन से खुशबुएँ। आदमी गौर करना चाहे। मैं एक दफ़ा एक आदमी से कहने लगा, दुनिया में किसी साइंसदान ने ऐसी गाड़ी ईजाद की है जो आप दोस्त की तरह पानी के अंदर चले, सफ़ीने आबिद की तरह पानी के ऊपर चले, F-16 की तरह हवाओं में चले, और प्राडो की तरह ज़मीन पे चले। चारों फंक्शन, ज़मीन पे चले, हवा में चले, पानी के ऊपर चले, पानी के नीचे चले। कहेंगे ये सिंपली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। या पानी के नीचे चलेगी तो ऊपर नहीं, ऊपर चलेगी तो हवा में नहीं, हवा में चलेगी तो ज़मीन पर नहीं। मैंने कहा अल्लाह ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो मुट्ठी के अंदर बंद हो जाती है, मुट्ठी के अंदर, और उसका जो सर है वो छोटे से प्याज के छोटे से दाने से छोटा है। उसके अंदर अल्लाह ने आबदोज भी रखी है, सफ़ीने आबिद भी रखा है, F-16 भी रखा है, और प्राडो भी रखी है, और उसको मुर्गा भी कहते हैं। मुर्गा भी को आप जानते हैं, पानियों के अंदर भी गोते लगाती है, पानियों के ऊपर भी तैरती है, हवाओं में उड़ती है, और खुश्की भी चलती है। इसको देखकर आप में से किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। क्यों कहें, इसलिए कि आज अरसा हुआ ये चश्मे बंद हो चुके हैं। और अगर कहें रशिया ने बनाई है, चीन ने बनाई, जापान ने बनाई है, तो आंखों के दीदे इतने खुल जाते कि उससे ज़्यादा खुलना। अच्छा, इतनी बड़ी मशीन कि वो पानी के अंदर भी चलती है, पानी के ऊपर भी चलती है हवा। अल्लाह ने कहा तो ऐसे गोंग सोंग होकर बैठे हैं। क्यों, अरसा हुआ, अल्लाह की ज़ात पे तासुर लेने की कैफियत ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह से ताकत बढ़ाएं, ईमान बढ़ाएं, नज़म में ईमान काम आएगा, कब्र में ईमान काम आएगा, पुल सिरात पे ईमान काम आएगा, मीज़ान में ईमान काम आएगा, 50,000 साल में ईमान काम आएगा, और जन्नत में ईमान काम आएगा। ईमान असल चीज़ है। और ये जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकानें फ़लसफ़ा से, ढूंढे से मिलेगे आकिल को ये पुरां के सिपारों में। आखिरी बात फिर ये तिलावत आयात करेंगे इंशाल्लाह जी। रोज़ की बिना पे करो, थोड़ा करो, एक आयत करो, रोज़ करो, वो बेहतर है। 10 आयतें करो और एक दिन करो, 10 दिन ना करो। गोलियां सारी इकट्ठी ले लो, डॉक्टर कहते हैं इससे तुम्हारी मौत यकीन हो जाएगी। आज लो, कल लो, परसों लो, 7 दिन लो, डेली एक लो। थोड़ी हो, मुसलसल हो, इससे ईमान ज़्यादा, इसको इस्तकामत कहते हैं। ज़्यादा करो और कभी ज़्यादा कर, इतना। और दूसरी है कि कायनात में कभी किसी एक चीज़ को देखकर कहा करो माँ सिवाय बीवी के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।